Good morning 12th class. Today we are starting with our new topic that is rights of partner. ठीक है. You have studied about the partner. There are various types of partner as well as the partnership is known as when two or more than two persons come together to do a particular kind of business, then that type of business is known as partnership. So when few persons are entered into a partnership, so I want to tell you that what are the different rights of an individual partner, or what are the different rights which are held by each and every partner. The first one is right to participate in the management of firm's business. See, whatever the work is going on in a business relating to partnership, every member has a right to participate in it, right? If you are doing a business, if you are managing any business, then every person as a partner has a right to participate in it. The second is right to inspect the books of accounts. See, as you all know that there are different books of account. For example, journal, ledger, trial balance, right? So relating to a concern, whatever the books maintained by a partnership firm, every partner has a right to inspect those books, right? The third is right to share in profit or loss. Whatever the profit or loss possessed by a partnership firm, every partner has a right to share it. It doesn't matter that what will be the your result of any activity, but every partner has a right to share the results. That result may be profit or that result may be loss. Every partner has a right to share it. And the next is a right to retire from the firm, right? After giving notice. When the duration of a particular partner is completed and if he wants to retire from that business, then he should give a notice, and after that notice he has a right to retire from the firm. Means if any person does not want to continue work in his firm or in that firm, then he should get retirement from that firm. It is a right of every partner and every person if he is doing in work in any firm. The next is right to be consulted about the affairs of the business. See, whatever the business is going on or whatever the matters are going on in the business, he has a right to be consulted about it, right? Means you should ask every partner, because every partner invests his capital, time, money, different types of things which he invests in that business. So he has a right to get consulted about that, right? देखिए, इसमें आज नया टॉपिक ये था कि राइट्स ऑफ पार्टनर के अलग अलग राइट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो पहला राइट था राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस. जो फर्म का बिजनेस है उसमें उसे पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा अधिकार होता है. ठीक है, दूसरा है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो भी अकाउंट्स की बुक फर्म मेंटेन कर रही है, पार्टनरशिप फर्म जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, वो उन बुक्स को देख सकता है, जांच सकता है, परख सकता है. ठीक है, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस. देखिए, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो कोई भी नहीं जानता, बिकॉज मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है. और अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो आप ये नहीं बता सकते कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो जो भी उससे रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो उसको पूरा अधिकार है कि वो उसे शेयर करे. अब वो रिजल्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, वो रिजल्ट लॉस भी हो सकता है. उसके बाद है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो उसका काम जो है वो कर चुका है, भरपूर जो जीवन है वो उसका लगा चुका है फर्म में और उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, या वो बहुत काम कर चुका है, थक चुका है और वो रेस्ट करना चाहता है, तो वो उस फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है. उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पहले नोटिस दे. ठीक है, उसके बाद उसका पूरा अधिकार बनता है कि वो फर्म से रिटायरमेंट ले ले. अगर उसके काम करने की क्षमता नहीं है तो वो बेशक रिटायरमेंट ले सकता है. उसके बाद है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. देखिए, हर पार्टनर अब बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाता है. ठीक है, जो भी उसके पास समय लगाता है, अपना नए नए आइडियाज़ लगाता है, और जो भी मतलब वो कर सकता था उस बिज़नेस के लिए उसने सब कुछ किया. ठीक है, तो उसका पूरा अधिकार है कि आप अगर बिज़नेस में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उससे पूछें, उससे कंसल्ट करें. जितना दूसरे पार्टनर्स का हक होता है उतना ही हर पार्टनर का हक होता है कि उनसे पूछा जाए. अगर बिज़नेस में आपको डिसीजन ले रहे हैं तो यकीन मानिए आपको उस पार्टनर को पूछते हुए ही चलना है.
तो अब नया टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। देखिए, व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड? इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट विच डिफाइंस एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, मैंने ये कहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसमें ये हर चीज़ें डिफाइन रहती है और वो डिस्क्राइब करते हैं रूल्स और जो भी कंडीशंस पार्टनर के बीच में हुई है, जिस तरह से वो बिज़नेस करेंगे, इसके बारे में जो भी बातें कही गई हैं, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड दो भागों में डिवाइडेड है। पार्टनरशिप डीड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज जनरल मैटर एंड द सेकेंड वन इज मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स. So here we first discuss about the general matters. What are the different general matters relating to partnership? The first one is name and address of the firm. The second is nature and area of business. The third one is the term or the duration of partnership, rights and duties of a partner, and entry and exit of a partner. देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि पार्टनरशिप डीड दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जनरल मैटर और दूसरा है मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स। अब जनरल मैटर में आता है कि क्या क्या जनरल मैटर हो सकते हैं। पहला है नेम और एड्रेस फर्म का, कि आप किस जगह बिजनेस करेंगे, आपकी पार्टनरशिप का नेचर क्या है, किस तरह का बिजनेस करेंगे, एरिया कितना है, आप कितने एरिया में बिजनेस करेंगे। उसके बाद है टर्म। टर्म में ये बताया जाता है कि जो ड्यूरेशन है, कितने समय के लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर, किस पार्टनर के क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या काम होंगे, कौन सा पार्टनर कैसे आएगा और कब जाएगा। ये सभी जो होते हैं ये जनरल मैटर्स में आते हैं। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। वो कोई सा भी एक जनरल मैटर देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये जनरल मैटर में इंक्लूड होता है कि नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स। देखिए, अकाउंट से रिलेटेड जैसे पहला है कैपिटल। वॉट एवर द कैपिटल ब्रॉड बाय डिफरेंट पार्टनर्स इज द मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स, राइट। अकाउंट से रिलेटिंग मैटर क्या होगा, जैसे कैपिटल है, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, लोन बाय पार्टनर। ठीक है, if any loan is given by partner or whatever the remuneration required by partner if he is doing some extra work in the firm, what is the ratio of sharing profit and loss by partners, and audit. See, there are various kinds of audit. मतलब कहने का ये है कि जो अकाउंटिंग मैटर्स होते हैं उसमें क्या आता है, उसमें जैसे है कैपिटल, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, लोन कितना दिया, क्या पार्टनर को रेम्यूनरेशन या सैलरी दी जाती है उसके कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए, उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से बांटेंगे। और ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है चेक। आप जो भी अकाउंट्स है उसको इंटरनली चेक कराएंगे या फिर कोई बाहर से ऑडिटर बुलवाएंगे। ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने फर्म का ऑडिट करवा के रखते हैं तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आप टैक्स भी इजीली भर सकते हैं। ऑडिट हमेशा ये बताता है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, ऑडिट दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट होता है और एक इंटरनल ऑडिट होता है, राइट। सो दीज आर सम मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं, अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो कौन से वो रूल होंगे जो एप्लीकेबल हो जाएंगे पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में। देखिए, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको एग्ज़ाम में पार्टनरशिप के क्वेश्चन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन लगता है, अगर आपको छोटी सी भी दिक्कत आ रही है सवाल सॉल्व करने में, तो आप बेहिचक थ्योरी अटेंड करें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पर गलत सवाल अटेम्प्ट मत कीजिएगा। ऐसा सवाल जिसमें आपको जरा सा भी संशय है, आप प्लीज़ उसे अटेम्प्ट मत कीजिएगा। पहला है पार्टिसिपेशन। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्टिंग फर्म्स बिजनेस। हर पार्टनर का यह अधिकार होता है कि वो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट ले, मतलब वो जो पार्टनरशिप फर्म आपने फॉर्म करी है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं तब। दूसरा है एक्सप्रेस ओपिनियन। हर पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ठीक है, हर पार्टनर अपना जो मत है, जो अपनी राय है अबाउट द बिजनेस, ही कैन पुट इट, राइट। हर पार्टनर अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, ये उसका अधिकार होता है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट इज नो रेम्यूनरेशन, राइट। नो रेम्यूनरेशन शैल बी पेड टू पार्टनर्स फॉर वर्किंग इन बिजनेस। किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा बिजनेस में काम करने के लिए। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो, अगर आपने एग्रीमेंट किया है, इफ़ यू आर डन अ पार्टनरशिप डीड एंड अबाउट द रेम्यूनरेशन मैटर,
is mentioned in it, so he is liable to get remuneration. Otherwise, no remuneration will be paid to the partner, right? The next is profit. See, प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स. ये भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछी जाती है कि जो प्रॉफिट है वो किस तरह से बांटा जाए. तो प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो. अगर आप डीड बनाते हैं देन it will be divided according to the partnership deed, but if no deed is maintained then it will be shared equally, right? Interest. No interest shall be paid on capital of partner. If he is entitled to interest it will be paid only out of profit. देखिए किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. वॉट एवर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर. जो भी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उसमें उसको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है. पर अगर उसके लिए अगर आपने उसको बोला है या बात देखी है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट केवल प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा. फिर देयर नेक्स्ट वन इज ऑथोरिटी, राइट. नो पार्टनर शैल डेलीगेट हिज ऑथोरिटी. अपने अधिकारों को कोई भी पार्टनर दे नहीं सकता, राइट. किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर अपने अधिकारों को डेलीगेट नहीं कर सकता. मतलब जो अधिकार एक पार्टनर के पास है, मान लीजिए कि वो कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है, तो वो अपना अधिकार किसी को दे के नहीं जा सकता. वो जब आएगा तो उसे उसके पूरे अधिकार होंगे, पर वो अपना अधिकार किसी को बांट नहीं सकता. दूसरा है, लास्ट है, असेट्स दे आर यूज्ड फॉर फर्म्स बिजनेस ओनली. देखिए, वॉट एवर द असेट्स आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द पार्टनरशिप फर्म दैट इज यूज्ड फॉर फर्म्स बिजनेस ओनली. ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस के असेट है तो आप उसे उठा के घर ले गए, ठीक है. सीधी सी बात है. देखिए, बिजनेस के असेट्स है तो वो पार्टनरशिप फर्म के ही काम में आएंगे. और जो भी फर्म ने बिजनेस लगाया है या जो भी फर्म ने बिजनेस मेंटेन करा है वो बिल्कुल मतलब उसी को देंगे, ठीक है. जो भी फर्म ने असेट्स खरीदी है वो जो असेट्स है वो उस फर्म के बिजनेस में ही काम आएगी. ऐसा नहीं कि आप उन असेट्स को घर ले जाएं, राइट. उस पर आपका कोई भी किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा. जो असेट्स है वो फर्म ही यूज़ करेगी. ओके. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप. थैंक यू चिल्ड्रंस.